Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we will learn about the remain portion of previous video lecture, that is features of genetic code. In previous video lecture, you have learned the genetic code or codon are 64 in number. Out of 64, as you all know, the 20 types of amino acids are coded by the different kinds of the codons. The number of codons was 64 while the number of amino acids are 20. So that it is clear that the every part of every kinds of amino acids are not possible to have the single kinds of codon. It may possible that the one amino acid may have the different kinds of codon. That is, one amino acid may have more than one codon. That is the degenerate codon. That is, the properties of codons was actually described in previous video lecture, and I hope your concept regarding the codons and their properties was clear in previous video lecture. If you have any problem regarding codons, genetic code and the terminology like the genetic code or codons are unambiguous, genetic code or codons are the degenerate, universal, triplet or the comaless, then you can frequently ask in the comment box. Every time the comment box is available for you. So without delay time, let's back on the different other features of codon. Codon was discovered by George Gamow in 1958, and later he founded that the number of codon may possible have 64. So let I begin the features of genetic code. That is features of genetic code or codon. Listen, features of genetic code or codon. George Gamow, who discovered the codon, was found that there are 64 codons. There are 64 codons code for different 20 types of amino acids. So it may possible that the one codon may have more than one amino acid may have more than one codon. So one amino acid may have more than one codons. That should be noted down by you. One amino acid may have more than one codon. Why? Because George Gamow found total 64 codons. By the formula 4 multiply 4 multiply 4. Why 4 multiply 4 multiply 4 and why the 4 only? Listen, as you all know, codons are triplet of nitrogenous base. Codons are triplet of nitrogenous base on mRNA template. अब mRNA टेम्पलेट पे mRNA मतलब RNA है, तो उसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल होंगे. एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल चार अमीनो एसिड, चार तरह के नाइट्रोजनस बेस का यूज करके तीन का अगर आपको ग्रुप बनाना हो तो मैक्सिमम कितने ग्रुप बन सकते हैं. तो इसी ट्रिक को, इसी फार्मूला को यूज करके जॉर्ज गैमो ने क्या किया, बोला कि टोटल नंबर ऑफ कोडॉन कितने हैं, 4. इनके तीन का अगर ग्रुप बनाए तो मैक्सिमम 4 पावर 3 का ग्रुप
भी बनेगा, यानी मैक्सिमम 4 पावर 3 को हम 4 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं, यानी 64 कोडॉन बताया पॉसिबल है। और 20 अमीनो एसिड्स के लिए 64 कोडॉन अगर पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है कि एक अमीनो एसिड के लिए ढेर सारे कोडॉन हो, और होता भी। देखा मैंने कल बताया था कि पेज नंबर 112 आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या बताया, किसने क्या बताया, जॉर्ज गैमो ने बताया कि कोडॉन जो है एक अमीनो एसिड के लिए ढेर सारे हो सकते हैं। और इसके बाद ये बताया कि 64 कोडॉन से, यानी 64 कोडॉन से 61 कोडॉन ही फंक्शनल कोडॉन होते हैं, यानी 61 कोडॉन ही किसी न किसी अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। बट द 3 कोडॉन्स never code for any amino acid। 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन ही डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, और 3 कोडॉन उसमें से ऐसे होते हैं जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, और उस कोडॉन को हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। सो द 3 कोडॉन that doesn't code for any amino acid called stop codon, और ये एग्जाम में आता है कि स्टॉप कोडॉन का एग्जाम्पल आप लिखिए। स्टॉप कोडॉन के एग्जाम्पल हम आसानी से लिख सकते हैं, यहां पे बता दे रहा हूं, UAA, UAG, UGA, ये स्टॉप कोडॉन है। यानी कि UAA, UAG और UGA ये 3 कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। आप पेज नंबर 112 एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें इन तीनों की जगह पे आपको स्टॉप लिखा होगा। UAA के आगे स्टॉप कोडॉन, इसके आगे भी स्टॉप, इसके आगे भी स्टॉप। ठीक है, तो ये चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी कि स्टॉप कोडॉन क्या होता है। इसमें ये स्टॉप कोडॉन किसी को कोड नहीं करते, बाकी 61 कोडॉन ये कोड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज में बात करूं, प्रोटीन सिंथेसिस तब शुरू होगा जब कोई ना कोई स्टार्ट कोडॉन होगा। तो स्टार्ट कोडॉन क्या होता है भाई, स्टार्ट कोडॉन होता है AUG, ये याद रखना है, AUG स्टार्ट कोडॉन, AUGR स्टार्ट कोडॉन। AUG क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है। ठीक है, स्टॉप कोडॉन क्या होता है, UAA, UAG, UGA। स्टार्ट कोडॉन होता है UAA, UAG, UGA। लेकिन स्टॉप कोडॉन ये होता है, लेकिन स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, AUG। और AUG का ड्यूअल रोल है, एक तो ये स्टार्ट कोडॉन है यानी प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करता है, और दूसरे ये मेथियोनिन को भी कोड करता है। इट आल्सो कोड फॉर मेथियोनिन, आल्सो कोड फॉर मेथियोनिन, it also code for methionine, so it has the dual role। एग्जाम में आता है what are the dual role of the start codon, what are the dual role of AUG। the dual role is first it code for the methionine and second it is the start codon। यानी कि आपने आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दो इवेंट्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन में एमआरएनए पे जो डिफरेंट कोडॉन है उसका यूज करके टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आता है और क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस का चेन बनाता है, जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, अब आपको एंटी कोडॉन का भी कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। अभी तक आपने कोडॉन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग एंटी कोडॉन के बारे में समझेंगे। ठीक है,
लिसन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटीकोडॉन। स्टूडेंट को कंफ्यूजन एंटीकोडॉन में नहीं होनी चाहिए। कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंटीकोडॉन, कोडॉन का उल्टा नहीं, कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लो कि अगर कोई कोडॉन है यू यू यू, ठीक है, यू यू यू, तो आप जानते हैं कि डीएनए के कॉन्सेप्ट में, डीएनए में क्या होता है कि थियामिन के प्रोपोर्शन में उधर एक साइड में एडेनिन होता है। अगर एक साइड में एडेनिन है तो उसके दूसरे साइड में क्या होता है, डीएनए के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक साइड में एडेनिन है तो उसके दूसरे साइड में थियामिन होगा, एक साइड में गुआनिन तो उसके दूसरे साइड में क्या होगा, साइटोसिन होगा। यानी एडेनिन इज इक्वल टू थियामिन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन, ठीक है। लेकिन आरएनए के केस में, आरएनए के केस में आपको क्या करना है कि एडेनिन इज इक्वल टू यूरेसिल करना है, ठीक है। थियामिन होता नहीं इसलिए एडेनिन इज इक्वल टू यूरेसिल, और यूरेसिल है तो उसकी जगह पे एडेनिन, और गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। ये बिल्कुल डीएनए की तरह से ही फॉलो करेगा। तो अब यहाँ पे अगर कोडॉन यू 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 है, ये किसको कोड करता है, फेनिल एलानाइन के लिए कोड करता है, ठीक है। सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यू यू यू, ये किसको कोड करता है, फेनिल एलानाइन। ये याद रखना, ये कोडॉन है, ये क्या है, कोडॉन, यानी कि फेनिल एलानाइन का जो कोडॉन होगा वो होगा कहाँ, वो होगा एमआरएनए के टेम्पलेट पे। ये एमआरएनए है, पोलैरिटी 5'2'3', इसमें कहीं यू 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 होगा, तो ये किसको कोड करेगा, ये सिर्फ फेनिल एलानाइन को कोड करेगा। ये है कोडॉन, ये याद रखना है। कोडॉन कहाँ होते हैं, कोडॉन होते हैं एमआरएनए के टेम्पलेट पे, और एंटीकोडॉन टीआरएनए में होता है, ठीक है। और टीआरएनए का स्ट्रक्चर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। यहां पे एंटीकोडॉन होते हैं, यहां पे क्या होता है, एंटीकोडॉन, और यहां पे इसका एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया था कि टीआरएनए को एडॉप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। टीआरएनए कॉल्ड एडॉप्टर मॉलिक्यूल, एडॉप्टर मॉलिक्यूल। रीजन क्या है, अडॉप्ट करता है, किसको एडॉप्ट करता है, जितने भी टीआरएनए होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं किसी एक एमिनो एसिड के लिए। जैसे एक टीआरएनए है तो ये किसी एक एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा। कैसे जानेंगे कि कौन सा टीआरएनए कौन से एमिनो एसिड के लिए होगा, जैसे जो यहाँ पे एंटीकोडॉन होगा वही उसका कोडॉन डिसाइड करेगा एमआरएनए पे, और एंटीकोडॉन जैसे अमीनो एसिड का एंटीकोडॉन जैसे हर एक अमीनो एसिड का होता है, वैसे हर एक अमीनो एसिड का एंटीकोडॉन भी होता है। आप पेज नंबर 112 पढ़ेंगे तो उसमें लिस्ट ऑफ कोडॉन और अमीनो एसिड होगा। मैंने अभी बताया कि फेनिल एलानाइन का जो कोडॉन होता है वो यू 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 होता है, ऐसे फेनिल एलानाइन का जो एंटीकोडॉन होगा वो ए होगा, ठीक है। और वो कहाँ होता है, वो टीआरएनए पे होता है। तो ये एंटीकोडॉन साइट है, यानी अगर यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे फेनिल एलानाइन होगा, यानी कि एवरी काइंड्स ऑफ टीआरएनए हैज स्पेसिफिक एमिनो एसिड, because of every kinds of tRNA has the anticodon. The anticodon is specific for special kinds of amino acid as like the codon. As like the codon, every kinds of amino acid has the specific anticodon. The main difference between codon and anticodon is anticodon are located over the tRNA while the codon on mRNA. तो ये tRNA का स्ट्रक्चर है। एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए कंटेनिंग फेनिल एलानाइन। तो क्या लिखेंगे, ऐसे डायग्राम बना देंगे, ऊपर PHE लिख देंगे, फेनिल एलानाइन का शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। इसके बाद क्या नीचे लिखेंगे AAA, यानी कि जब टीआरएनए बनाएंगे तो कोडॉन नहीं लिखेंगे, याद खाली लर्न कर लेंगे हम लोग कोडॉन, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, उसका एंटीकोडॉन लिखना है, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है व्हाट विल बी द कोडॉन ऑफ फेनिल एलानाइन तो यू लिख देंगे, लेकिन एंटीकोडॉन नहीं लिखेंगे। कोडॉन
और एंटी कोडॉन में डिफरेंट होता है। टीआरएनए में हमेशा एंटी कोडॉन लिखेंगे, एमआरएनए में कोडॉन लिखेंगे। तो होगा क्या कि ये टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम लेके आएगा और ये जहां यू होगा वहीं जाकर के रुकेगा, जहां ए होगा वहां नहीं रुकेगा, जहां ए होगा वहां नहीं रुकेगा, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है यू आरएनए में। तो जहां ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू होगा वहीं आकर के रुक जाएगा। बाद में हम लोग ट्रांसलेशन में इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। नाउ बैक टू द सेंट्रल डोग्मा, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। In 1958, Francis Crick report the protein synthesis machinery in form of central dogma, and he also concluded that the protein synthesis occurs in two basic steps, in which the DNA convert into RNA and later RNA convert into protein. The process in which flow of genetic information from double-stranded DNA to the single-stranded RNA and later the long chain of polypeptide chain is represented as a form of central dogma. So what is central dogma? The diagrammatic representation of flow of genetic information from DNA to RNA, that is mRNA, and mRNA to the protein is known as central dogma. Diagrammatic representation of flow of genetic information from DNA to mRNA and further from mRNA to protein, that is known as the central dogma. In next video lecture, we will learn about whatever the criteria decided by the central for the central dogma by the Francis Crick, and also we will describe about the requirement of transcription. So later it was explained by Francis Crick that the flow of genetic information from DNA to mRNA was called as transcription, and flow of genetic information from mRNA to protein was called as the translation. Later, the detail about the transcription and translation will be discussed in next video lecture. So be with the video lecture and be with the channel in order to understand the concepts about the central dogma. तो बेसिकली सेंट्रल डोग्मा होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन हो रही होगी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया डीएनए से एमआरएनए पे और एमआरएनए से प्रोटीन को, सिर्फ उसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। आप 11th में और 10th में पढ़े थे कि जो मैकेनिज्म ऑफ द पल्सेस होता है उसको रिप्रेजेंटेशन को हम लोग रिफ्लेक्स आर्म बोलते हैं और उसके एक्शन को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का बायोलॉजी में अलग टर्म होता है और जो उसका फिजिकल जो उसकी मैकेनिज्म होता है उसका अलग टर्म होता है। तो ये मैकेनिज्म में आपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन देखा, लेकिन ओवरऑल अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। फ्यूचर में ये प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स देन यू कैन फ्रीक्वेंटली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स or in the live session. Keep in mind, in next video lecture we will describe about the detail in transcription and translation. Thank you.